آج ہماری پولیٹیکل افیئر کمیٹی کی میٹنگ تھی اور کچھ ممبر ابھی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ تو چلے گئے ہیں. تو جنرل ہم نے جموں کشمیر کی سچویشن کو ڈسکس کیا، جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 5 اگست کے بعد دن بدن جو جموں کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑے بھی جا رہے ہیں. مشکلات بہت زیادہ ہے لوگوں کو. ڈس امپاورمنٹ جتنا بھی روز بروز کوشش کی جاتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ان کے حقوق ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے آئین نے گارنٹیز دی ہیں، ان کو مسخ کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دس از نتھنگ نیو. اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کے کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے. ایک پہلے ہی ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح سے اس کو ڈس امپاور کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے، جو ہمارے حقوق تھے، جو ہمارے پاورز تھے، ان کو ختم کیا گیا. سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ابھی کہ ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ 2019 سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پبلک سروس کمیشن کو، SSRB کو، وہ وڈرا کی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 2019 سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جموں کشمیر کے باشندے تھے. اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچرل سی بات ہے اس میں باہر کے لوگ، پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اس سے بھی نقصان ہو گیا. ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہریانہ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، UP سے آ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ جموں ہے چاہے کشمیر ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ڈس امپاور کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دن بدن زیادہ کمزور کیا جائے. اور جو آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں، چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، ان پہ تو پہلے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کے اوپر زیادہ عذاب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عذاب ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پہ اوپر عذاب ہے، یہاں کے نوجوانوں پہ عذاب ہے، یا یہاں کے جرنلسٹ پہ عذاب ہے. ابھی بھی میں نے سنا کئی جرنلسٹ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا نام FIR میں ڈال دیا. ابھی تو فہد شاہ، اس سے پہلے سجاد گل، اس کے بعد میں نے سنا اس کو گوہر گیلانی کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور کو بھی. اور انہوں نے یہاں ایک سسٹم چلایا ہے کہ جو ملائن کرتے ہیں جرنلسٹ کے نام کو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی جرنلسٹ یہاں سے جو ہیں اس وقت کہیں بھاگے ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چالو ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی ہے، اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے اوپر سے جو ڈی لمیٹیشن کیا گیا ہے، اس ڈی لمیٹیشن میں BJP پارٹی کے سوا سب کا جو ہے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسیز کو، بھئی اگر آپ کو راجوری پونچھ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی الگ بنانا چاہتے ہیں، تو راجوری پونچھ انتظار کر لیجئے. 2026 میں راجوری پونچھ کو الگ پارلیمنٹری سیٹ دے دیجئے. چناب ویلی کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کو الگ پارلیمنٹ سیٹ دے دیجئے. 2024 میں تو ڈیلیمیٹیشن ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ دور دراز کے علاقے، ان کی اپنی پارلیمنٹ سیٹس ہونی چاہیے. تو اس لیے آج ہم سب ملے، ہم نے بات کی، ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیکٹیرین لیول پہ، سوشل لیول پہ، ہر لیول پہ جموں کشمیر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. مگر ہمارا جو PDP کا جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری سٹرگل ہے، وہ اس کے خلاف رہے گی. جو ہمارا
जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये उसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और हमने बार बार कहा जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब इसको मसला बनाया, क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपने। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ इजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर का ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहां देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू का कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर। हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी, मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। आप कोई बात सच्ची कह दो, अभी तो हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। जब से कश्मीर वाला का पहले एक लड़का अरेस्ट, दूसरा, क्योंकि वही हमारे पास ये कुछ कुछ लड़के हैं हमारे जो मीडिया के हैं, जो सच्ची बात कहते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, तभी हम बात करते थे। हमारे तक जब आप लोगों को ही बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कम फॉरवर्ड और डिमांड करेंगे कि जितने भी हमारे लोग इन्होंने बंद किए हैं जर्नलिस्ट, उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मैडम, मेरा एक सवाल है। अब 370 खत्म होने के बाद भाजपा जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बदलाव आएगा, डेवलपमेंट। अब कुछ इन्वेस्टर्स भी आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और कुछ ग्रुप्स यहाँ पे, दुबई बेसिक ग्रुप्स यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट उनके हिसाब से तो हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, जिस जगह के लोग कैदी बने हो उनको हर तरफ से फोर्सेस पुलिस के घेराव में, जिनके इवन द थॉट्स आर बीइंग मॉनिटर्ड, उस जगह में आप बाहर क्या, आप जन्नत से भी लोगों को लेके आएंगे? उस जगह की तरक्की कैसे हो सकती है व्हेन यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? जब आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, आपके ऊपर मुश्किल आ रही है उसकी बात नहीं कर सकते, आपके यहाँ एनकाउंटर हो रहा है जिसमें कभी हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है, कभी व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे मारा जाता है, ये हमें पता नहीं ये कौन सा मिलिटेंट नया पैदा हो गया है। तो जब तक इस किस्म का खून खराबा चलता रहा, जब तक इस किस्म का लोगों को सफोकेट किया जाएगा, आप कहाँ से भी इन्वेस्टर्स को लाएंगे तो यहाँ के लोगों के हालात तो ऐसे नहीं बदलेंगे। आधा घंटा पहले अगर आपकी जगह कोई और होता मैं उससे भी सवाल करता, पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर फारूक साहब अभी पुलवामा किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गए थे, उसमें जो अब ये मसले चल रहे हैं हिजाब वगैरह जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये कुछ देर तक रहेगा जब तक इलेक्शन है। एक ये दूसरा कि जो भी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं हर किसी के चेहरे बयान करते हैं, तो जाहिर सी हर किसी की पोजीशन चेहरे से बताई जाती है, बिकॉज बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जो सिचुएशन आने वाली है या जो आप प्रेजेंट इस वक्त फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप इसे बात करें ना करें, डिवाइडिंग डे बाय डे, इंस्टेड ऑफ डू समथिंग फॉर दीज थिंग्स वी आर इंक्रीजिंग मोर मेंबर्स। मेरी पार्टी में इतने हैं, उसकी पार्टी में इतने आगे हैं, यूनाइटेड की इस पर कोई बात हुई या ये कह सकते हैं हम व्हाट नेक्स्ट, जॉब वगैरह ये तो फॉर टाइम भी चलेगा। ये चीज़ें जैसे आपने पहले ही कहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, आने वाले टाइम में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है या पहले भी कुछ हुआ है, नेक्स्ट क्या रहेगा? नहीं, देखिए, एक तो मुझे ये तो ठीक है यूपी इलेक्शन के लिए ज़रूर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा डर ये है, मेरा अप्रहेंशन ये है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एट हिजाब। इसके बाद जो दूसरी हमारी निशानियाँ, तीसरी निशानियाँ, चौथी निशानियाँ, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने, वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए। उसकी तमाम निशानियाँ जो हैं ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। काकर खान ने भी जम्मू कश्मीर के ऊपर राज किया और बड़े जुल्म किए। बहुत सारे जो यहाँ आए हैं बाहर से, जिन्होंने यहाँ राज किया है, रूलर्स आए हैं, बहुत लोगों को अजियत दी है, मगर ये वक्त रहने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने ऑलरेडी PhD बनाई हुई है, इसको फाइट करने के लिए वी आर फाइटिंग, वी आर गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल, और इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे। जैसे अभी तक हम लड़ रहे हैं, मेरा मतलब इकट्ठे लड़ने का मतलब है स्ट्रगल, विल स्ट्रगल टुगेदर। तो कोशिश तो हो रही है कि PhD को तोड़ा जाए, कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को लालच दे के अलग किया जाए। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की आखिरी उम्मीद है PhD, इसको हम इकट्ठा रखेंगे और स्ट्रगल भी करेंगे। आपने पाकिस्तान से कैसे जो आपने बात कहा है, बट गवर्नमेंट अपने कैटेगोरिकली से अब उनके साथ कोई बात नहीं होगी, अगर होगी तो वो अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर है उस पर। अभी तो मेरे ख्याल में पहले तो उनको एक काम करना चाहिए, जो चीन यहाँ रोज रोज हमारे यहाँ घुस रहा है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। वो भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसके बारे में बात करना चाहिए। और जो हमारा सीज फायर चल रहा है, तो इसमें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हुई तभी सीज फायर चला। तो ये अब शर्माते हैं ये कहने से कि हम पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करूं। आफ्टर ऑल इनके बड़े लीडर वाजपेयी जी ने पाकिस्तान जाके बात की, खुद मोदी जी पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। तो ये तो कहने की बातें, आखिरकार तो वही करना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं होगा। कर्नाटका में हिजाब विवाद शुरू हुआ तो आपने ट्वीट करके उसकी निंदा की। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो 3 दिनों से लगातार 12वीं की कक्षा की जो छात्रा है, टॉपर है, उस पर ट्रोल किया जा रहा है, आपकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया? नहीं, मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं किया ट्रोल हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा, चाहे वो रहे ना रहे, कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगी वो भी हिजाब वाली होगी किसी न किसी। I don't want to comment on that. Madam, I want to take you back a quick flashback. Last year in a presser you said you never know when you are going to get arrested. The way the stand the PDP has taken, and when it was the time for the GDC elections,
You said the election is not your priority. Your priority is the reversal of August 5, 2019 decision. Given the situation that PDP is going through, and one of your senior leader recently disassociated from the party post and PSC committee. So how do you see all this चलता happening? रहता है, घरों के अंदर ये बातें चलती रहती, कभी कोई रूठता है, कोई मनाता है. उसने पार्टी तो नहीं छोड़ी. He has been a very great colleague. बहुत मुश्किल हालात में वो हमारे साथ खड़े रहे, जबकि बहुत सारे लोग भाग गए, वो हमारे साथ खड़े रहे. उनकी कोई प्रॉब्लम है जो सुलझ जाएगी, और यू विल सी हिम इंशाल्लाह फिर हमारे साथ. So PSP has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned, and PAGD was framed. Do you think that still PAGD is still serving the purpose, or is it only like देखिए, the president is, अगर कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही होती तो इस तरह जो पूरे हमारे मुल्क के ताकत, बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है कि पीएचडी को कैसे तोड़ा जाए. दैट मीन्स वी आर सर्विंग सम पर्पस. कम से कम हमने लोगों को एक होप दी है, एक उम्मीद दी है, और इस वक्त उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है. कभी देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन नॉट डू मच, और उस वक्त लोगों को उम्मीद देना सबसे बड़ी चीज़ होती है. One question I want to add here. किया है, क्या आपको लगता है कि ये इशू अब आहिस्ता आहिस्ता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उछाल रहा है? ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे तो इसके ऊपर बातें हो रही है, और हमारे मुल्क का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई एक ड्रेस कोड है. हमारे यहाँ तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है. अगर यूनिफॉर्म भी है तो दुपट्टा आप जिस तरह चाहो सर पे लपेट सकते हो. तो मैंने यही कहा ना, एक तो यूपी इलेक्शन के लिए हो रहा है, दूसरा ये यहाँ नहीं रुकेगा. इसके बाद जो हमारी और निशानियाँ हैं उनको अटैक किया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए हिंदुस्तानी होना काफ़ी नहीं है, उनके लिए बीजेपी होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो बनना नहीं चाहते हैं. Madam, do you think if the JNK will get statehood, something will be changed? वो तो देखा जाएगा when it comes to that. ये तो अभी किसी चीज़ को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज रिमोट कंट्रोल से दे आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग. दे आर ट्राइंग टू मॉनिटर इन आवर थॉट्स. जो अभी किया भी नहीं होता उसके लिए भी आपको अरेस्ट किया जाता है. Political parties demanding the restoration of state. नहीं, वो तो ठीक है, वो कर रही है. One question I want to add here. अच्छा, कुर्फ वगैरह सवाल करा. Member Parliament is in Delhi. Nothing was speaking about, Member Parliament, Mr. Farooq Abdullah, he spoke about inflation. He spoke about certain other aspects. But since he is also heading the PAGD, nothing much was spoken about the Kashmir there in the Parliament. नहीं, वो तो खैर, वो तो मेरे ख्याल में वो बोला होगा कुछ. I don't think I should. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.